चगरा एक निबेरो राम। जो तुम अपने जन सो काम। रहाओ ये मन बड़ा के जासो मन मानिया। राम बड़ा कै राम है जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया। वेद बड़ा के जहाँ ते आया। कह कबीर हूँ भया उदास। तीरथ बड़ा के हर का दास। कह कबीर हूँ भया उदास। तीरथ बड़ा के हर का दास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੀਂਦਰ ਆਲਸ ਆਦਿ ਦਾ ਤਰਕ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਦਮੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਹੁਣੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 331 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, हे ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵੰਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝਗੜਾ ਏਕ ਨਿਬੇਰੋ ਰਾਮ ਜੋ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਜਨ ਸਿਓ ਕਾਮ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੁਚਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੇੜੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਵੰਝਾਂ ਡੋਮਣੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਦੱਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਢੇਨਾ ਹੈ, ਡੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਢੇਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਹਾਂ ਭੀ ਵੰਝਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੰਝਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਡੋਮਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਰਾਸਣ। ਡੂਮ ਮਾਇਨੇ ਮਰਾਸੀ ਔਰ ਡੂਮਨੀ ਮਾਇਨੇ ਮਿਰਾਸਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਰਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤਰਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲੁਤਫ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਬਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਪੀ ਵੰਝਾਂ ਡੋਮਣੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੂਮ ਤੇ ਡੂਮਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਡੋਲ ਗਏ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ।
फिर वापस आए तो लंबी कथा है। तो पंजवें पातशाह ने कहा भी तुसी बड़ा कुछ किया, मैं बर्दाश्त कर लिया, पर जदों तुसी कहा ना भी जे गुरु नानक नाल भी साडा बरादरी भरा मरदाना ना हुंदा ते तुहाडे गुरु नानक नूं भी किसी ने सी पुछना। वो गल मैनूं इंज होया जिवें मेरी छाती दे उत्ते किसी कोबरे ने डंग मारिया होवे। तुहानूं मैं शेक दिता सी, हुण लद्दा परोपकारी तुहानूं लै आया, तुहानूं बख्श देना, पर एक कंडीशन है, शर्त है। कई आंदे ने जी शर्त नहीं गुरु लांदा, नहीं किते किते गुरु भी शर्त लांदा। जिस रसना नाल तुसी निंदा कीती सी उसे रसना नाल गुरु नानक दी तारीफ करो। फिर उन्होंने तारीफ की, वो बाणी है राम कली की वार राय बलवंड। देखो पहला उन्होंने राय लिख दिता, तुसी समझते हो राय ते मुबारक है, राय मैंने राजा सम्राट। क्यों राय लिखिया? क्योंकि जिसनू बख्शे सिफत सालाह नानक पातशाही पातशाह। ये जिहड़ी तारीफ है ना उत्थे बैठ के गुरमुख प्यारे करते ने, इत्थे बैठ के करते ने, ये पातशाह ने। और विचार आवे मन विच भी मुफलिस लोग हुंदे ने, ज्यादातर माली पक्षों कमजोर हुंदे ने। मैं पता इहनूं किवें लैना, मैं वेख्या जिहड़े साडे लाणे विच थोड़े माली पक्षों ठीक हो जांदे ने, काम ही छड्ड जांदे। वो रखदा मुफलिस, तेरे तो अजे होर सेवा लैणी है, तू भज जाना। वो मुफलिस रखदा है क्योंकि उन्हें सेवा लैनी है ना। मैं एक दिन बाबा सुच्चा संगरा कोल बैठा सा, मैनूं वो गल कदी नहीं भुलदी, बड़ा प्यार करते सन, बड़ी चंगी आत्मा सी। जाती तौर पर जिहड़ा मेरा उन्हां नाल तजर्बा है, एक नेक संत महात्मा उन्होंने छड्ड दिओ, इंसानियत पक्षों एक अच्छा इंसान सी। बैठे सां, एक रुलिया जिहा मेरे वर्गा ग्रंथी गया ते वो इस तरह तख्त भोज उन्हां लाया हुंदा सी, बैठे ते बाकी फर्श ते संगत बैठ, मैं भी उत्थे जाके बैठ जाता हुंदा हां। क्योंकि मैं ज्ञानी साहब सिंह कनेडा वाले ते ज्ञानी पिंदरपाल सिंह इन्हां दे संपर्क च आए, यही मैनूं इस फील्ड विच लैके आए सन। तो इन्हां दा प्यार सी, लिहाजा मैं भी कदी कदी चला जाता हाँ। तो घटना हुई भी जदों उत्थे बैठे, एक रुलिया जिहा, मैनूं खिमा कर देना, बेचारा मुफलिस जिहा मेरे वर्गा ग्रंथी, हजूरिया उन्हें गल च पाया, वो भी मैला। कई बार रजेवे इन्ने हुंदे ने, भजना सुंदी भी उन्होंने धोण दा मौका नहीं मिलता, जिहड़े बैचलर मुंडे हुंदे ने। जदों उन्हें इस तरह चुक के इस तरह अंज किया तो उन्होंने उसकी पिठ ते हथ रखिया, फतेह बुलाई, ते बाबा सुच्चा सिंह कह लगे आओ पातशाहो। उस ग्रंथी नूं कह लगे आओ पातशाहो। ते फिर जिहड़ा कोल सिंह सी उहनूं कह लगे भी इहनूं सिंह नूं लंगर च लै जा, कुछ छका के लिया। उत्थे एक उन्हां दे श्रद्धालु खास सेठी साहब करके बैठे हुंदे सन। जदों ग्रंथी सिंह चला गया ना, वो गुरमुख प्यारे बाबा जी नूं कह लगे बाबा जी एक बेनती करा, गुस्सा ना करोगे? कह लगे नहीं। आख लगे दसो बई ये पातशाह है कि तुसीं मजाक कीता है? ये दसो भी ये जिहड़ा ग्रंथी है, जिहड़ा भाई आया जिन्हों तुसीं आख्या आओ पातशाह, ये पातशाह है कि मजाक कीता जे? ते आखन लगे सेठी साहब मैं मजाक नहीं कीता, ये पातशाह। महाराज ये पातशाह किवें? एक कल तुरिया हुंदा सी साइकिल ते इहदा ते हजूरिया पिछले फ्राई पैन च फसिया पिया सी, चैन वाले च बुरा हाल बाकी। ये पातशाह किवें है? ते उन्होंने पंक्ति पढ़ी, जिसनू बख्शे सिफत साला नानक पातशाही पातशाह। सेठी साहब ओदे दर ते कोई कमी नहीं, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब कुछ है। इन्हां नूं मुफलिस रखदा जान बुझ के, इन्हां नूं गरीब रखदा जान बुझ के, ताकि ये इस दर की सेवा करते रहन। जदों किसी का माली हालत थोड़ी जी ठीक होंदी, तुसीं वेख्या वो फिर कहंदा जी हुण खुले प्रोग्राम करने ने, रैगूलर नहीं करने, सवेरे शाम की हाजरी नहीं करनी। हुण किते कोई सदेगा 11,000 भेटा, 5500 भेटा, 21,000 उत्थे करांगा, उंज नहीं करनी। इस वास्ते वो परिस्थितियां इस तरह दियां बना देंदा, भाई तेरे तो सेवा अजे होर लैनी। नजरिया अपना अपना। हजूर ने पहला राय लिखिया, ये कीर्तनिया ने बलवंडा ते सत्ता, गल डूम ते डूमणी दी चल रही है, समझ लेना, फिर आप अगे चलना।
महाराज ने भाई गुरदास नूं क्या भी लिखो राम कली की वार, फिर लिखिया राय बलवंड। प्यारे राय दे अर्थ हुंदे ने राजा, ते नाल थोड़ा जिहा वेरवा भी लिख दिता, राय बलवंड तथा सत्तै डूम आखी। डूम मरासी नूं कहंदे ते डूमणी मरासन हो गया। हुण जिहड़े नुकते तो मैं गल शुरू की सी, डड्डे पैर दो नुकते आ जाण, डूमणी मिरासन एक होवे ते फिर डो मणी, इहनूं इदां उचार करना, डो मणी, दो मनी, डबल माइंडेड। डबल माइंडेड जिहड़ा व्यक्ति है उहनूं मंजिल नहीं मिलदी। हुण वेखो ना, तुसीं सीढ़ियां चढ़नियां ने, तुसीं डबल माइंडेड हो, चढ़ा कि ना चढ़ा, एक सीढ़ी चढ़ लई, फिर एक सीढ़ी उतर गए, फिर एक चढ़ गए, फिर उतर गए, फिर चढ़ गए, उतर गए, और ता उम्र लगे रहो, तुसीं छत ते थोड़ा चढ़ोगे। यही हाल डबल माइंडेड व्यक्ति का होता है। इस वास्ते भाई साहब कहते हैं भी दो बेड़ी लत्तां वाला व्यक्ति किनारे ते नहीं लगता। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संदौरा। हुण डगमग छड्ड, बई नाम जपना है कि नहीं, बाणी पढ़नी है कि नहीं, सेवा करनी है कि नहीं, हुण कमर कस्सा कर लिया ते हुण डट जा, सिद्धा हो वकारां दे टाकरे ते आ जा, और उन्होंने कहे भी आओ मैदान दे विच देखने आ भी तुसीं जितदे हो कि मैं जितना, और फिर जूझ जा, खंडा खिंच के मैदान च आ जा, हार जित जाने वैग। हुण भगत कबीर साहब महाराज कहते भी मेरे अंदर एक दुचितापन बनया है, और इस दुचितेपन ने हे वागुरू मैनू किते अपड़ नहीं देना, तू मेरा शंका निवृत्त कर। कोई है इस तरह का ग्रंथ जिहदे विच इस तरह इन्ने क्लीयर बचन किए गए हुण भी ऐदां करो आ दसो, सारे सत्कारयोग ने, पर इदां तुहानूं किते नहीं मिलेगा। बहुत निज के ते मैं अध्ययन नहीं किया, पर पंछी जी झात मैं बाइबल ते भी मारी है, ट्रांसलेशन कुरान दियां भी कुछ आयतां नूं मैं कोखिया, पर इदां किते नहीं। सब सत्कारयोग ने, बड़े चंगे ने, पर जिस तरह ये विग्यानक युग का ये जिहड़ा धर्म है ग्रंथ है, ये कहानी तुहानूं किते नहीं मिलेगी। खुशकिस्मत असीं सारे, सानूं प्राउड करना चाहिए। हुण कबीर साहब महाराज कहते ने, झगड़ा एक नबेरो राम, हे अकाल पुरख मेरे अंदर एक झगड़ा चलता रहिंदा है, संकल्पां दा ते विकल्पां दा, शंके दा। जो तुम अपने जन सौ काम, जे तेनू अपने सेवक नाल काम है, जे तेनू मेरी लोड़ है, जे तू चाहुंदा भी मैं तेरे चरनां च जुड़िया रहां, ते फिर की कर, एक मेरा झगड़ा, जां सौखे शब्दां जटकी बोली च कह रही है भी मेरा एक शंका निवृत्त कर दे। हुण शंका अगे तुसीं वेखो, एक नहीं शंके कई ने, सारे शब्द शंके ने। कि झगड़ा एक नबेरो राम, जो तुम अपने जन स्यों काम, ए मन बड़ा के जान स्यों मन मानिया, राम बड़ा के रामे जाने। ये दसो भी ये साडा जिहड़ा मन है ये वड्डा है कि जिहदे विच मन पतीत जाता है, वह वड्डा है। हुण सवाल वाकई थोड़े जिहे टफ ने, सधारण नहीं। एक ना साडे इत्थे हिंदुस्तान दी धार्मिक फील्ड विच एक ट्रेंड चलदा सी भी जदों किसी नूं थोड़ी जी प्राप्ति हो जानी ना, उन्हें बहुत फुल जा। जिवें चार भगत आए सन ना गुरु अर्जन साहब कोल, उन्हां विचों एक भगत नूं महाराज आख्या भी तू दस की लिखाना चाहना है। वो कहता ओही रे मैं ओही रे, जां को वेद पुराण जस गावे, खोज थक्यो सब कोई रे, भा मैं रब आ। हुण इहनूं हिंदू संत कहंदे सन अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि। ते जिहड़े मुसलमान सन वो कहंदे सन अनल हक मैं खुदा हां, अनल हक मैं खुदा हां, अनल हक मैं खुदा हां। ये मुसलमान फकीर कहंदे सन। और सिखिज्म ने इनू मूलों कंडेम कर दिता बई जेड़ा जूना विच आ जाए वो होर जो मर्जी होवे वो रब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिहड़ा मूल स्रोत है सिखिज्म का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੂਨੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਜਾਂ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨਾਲ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀਵਨ ਕਿਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15-20 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 50 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਗੀ, ਇੰਨਾ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ, ਮਨਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ। ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਨਲ ਹੱਕ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਕੱਢੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਮਨ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਲਵੇ। ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਕੇ ਰਾਮੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੋਡ ਕਹਿ ਲੋ, ਭਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੂੰਦ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਗਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ H2O ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਦੀ ਵਿੱਥ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਗਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੇਤਾ ਰਵੇ। ਝਗੜਾ ਏਕ ਨਬੇਰੋ ਰਾਮ, ਜੋ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਜਨ ਸੋ ਕਾਮ। ਇਹ ਮਨ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਕੇ ਰਾਮੇ ਜਾਣਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਾਸ ਉਪਾਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਦ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੇਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਰਚੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਦ ਆਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 100 ਕਰੋੜ 200 ਕਰੋੜ 300 ਕਰੋੜ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਉਹ ਕਰਦਾ।
लिहाजा असी एक्टर नाल जुड़ जाते हैं। इसे तरह इस संबंध विच भी महाराज कहते हैं भी भाई एक्टर नाल ना जुड़, डायरैक्टर नाल जुड़। जे ब्रह्मा नूं बनाया, ब्रह्मा तो वड्डा ही होगा। वो कौन है? वो परमात्मा है। वेद वड्डा के जहां ते आया, ये दसो भी वेद वड्डा है कि जिथों वेद आए ने वो वड्डा है? हुण सारे शब्द का निचोड़ की है भी जग्यासू गुरु दे कोल अपना आपा अर्पण करता है और गुरु ओदा पार उतारा करता है, तीरथ ओदा पार उतारा नहीं करते। अखीर च कहंदे कौ कबीरों पाया उदास, तीरथ वड्डा के हर का दास। हुण तीरथ किवें बनदा है? वेखो असीं इत्थे बैठे हैं, ये इतिहासक स्थान है। ये किवें बनिया? ये तो गुरु नानक दे चरण पै, गुरु हरगोबिंद साहब दे, ये जी हिस्टोरीकल है, ठीक है। पर की इतिहासक स्थान जिन्हां दे चरण पैण करके बनिया उन्हां नालों वड्डा है? क्योंकि उन्होंने तो इस तरह के पता नहीं कितने इतिहासक स्थान क्रिएट कर दिते। वो तो डायरैक्टर ने ना, ये तो उन्होंने किरत है, वो करते ने। इसलिए तीरथ वड्डा नहीं। क्यों? क्योंकि तीरथ ते बन गए जिथे जिथे महापुरुष गए, जिथे जिथे महापुरुषों के चरण पए प्यारे, वो तीर्थ बन गए। फिर तीर्थ वड्डा किवें हो गया? इसलिए असी तीर्थां दी टेक, तीर्थां दा आसरा नहीं लेना। हिस्टोरीकल प्लेस ने जिहड़े साडे, उहदे भावना नाल दर्शन करने, वो वखरी गल है। पर असल विच पार उतारा परमात्मा ने करना है। दो शब्द मैं तुहाडी नज़र इस संदर्भ विच कर दियां। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, कौ कबीर हो पाया उदास, तीर्थ वटा के हर का दस। इत्थे डन हो जाता शब्द। और साडे कोल जिहड़े 15-20 मिनट बचे ने, इहदे विच मैं इहनूं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर दियां। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ ना जाना। यह फैसला है गुरमत का। लोक पतीने कछू ना होवे, ना ही राम जाना। हाँ, एक गल पक्की है, लोक पतीत जाते, लोग पतीत जाते ने। कोई दसे भी मैं इतनी बार हजूर साहब होए, हजूर साहब जाना चाहिए। साडे सतगुरु सच्चे पातशाह ने उत्थे चरण पाए ने, उत्थे ही महाराज ने पंज पूतक शरीर त्यागया है। उत्थे कई किस्म के महाराज ने चोज कीते ने, जरूर दर्शन करने चाहिए। पर होड़ नहीं होनी चाहिए। तुसी कितनी बार, मैं 20 बार नहीं जी, 10 से 30 बार हो आए। ये होड़ नहीं होनी चाहिए, ये कंपीटिशन नहीं होना चाहिए। उंज जाना चाहिए गाहे बगाहे। जे असी अफोर्ड करने हैं, साडे कोल वक्त है, एनर्जी है, मनी है, दर्शन कर होने चाहिए। पर दर्शन करके भी जे गुरमत नूं फॉलो नहीं किया तो फिर सिर्फ दर्शन कुछ नहीं सवारनगे, ये भी मर्ज करते। कबीर गंगा तीर जो घर करें, पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुकत होए, इयों कह रमे कबीर। भावें गंगा के कंढे ते घर बना के रहन लग पो, गंगा के पानी नाल ही रसोई तैयार कर, गंगा के पानी नाल ही कपड़े धो, गंगा का पानी पी, गंगा के पानी नाल नहा, पर चंगे काम नहीं करता तो गंगा के पानी ने तेरा कुछ नहीं सवारना। क्योंकि गंगा जल गुर गोबिंद नाम, तेरा गंगा जल गुरु गोबिंद का नाम है, तेरे वास्ते वैगुरु गंगा जल है सिखिज्म अनुसार। हुण कबीर साहब ही इस शब्द नूं खोलते हैं, कहते हैं अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ ना जाना। लोक पतीने कछू ना होवे, ना ही राम ही आना। लोक पतीज जाणगे, रब नहीं पतीजेगा। क्यों नहीं पतीजेगा? क्योंकि रब कोई आना थोड़ा। लोक ते आने ने, इन्हां नूं भरमाया जा सकता है। लोगां नूं भरमाना कोई बहुत औखा नहीं गा। अज तुसीं धर्म के खेतर विच वेखो, कितने लोग भरम का शिकार ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह वर्गा खजाना कोल होवे ते बंदे दा बंदा बनिया फिरे बंदा। समझे ही ना गल भी जो ये कह रहा है मैं गुरबाणी नाल मैच करके वेख ला भी ये ठीक ते कह रहा है, किते मेरा शोषण ते नहीं कर रहा, किते मैनू ये गलत रस्ते ते नहीं पा रहा। वो फुरसत ही को नहीं किसी को। सब कुछ सानू कीता कराया चाहिए।
लिहाजा वड्डी गिनती जिहड़ी है वो इस तरह इस चीज का शिकार हो रही, ये भी मैं अर्ज कर दिया आप जी दे। परमात्मा इयाना नहीं, लोक इयाने ने, लोक पतीत जाते ने। पूजो राम एक ही देवा, और साचा नावण गुर की सेवा। आप जी दे हौसले बुलंद करने लई बेनती करा। कहते गुरु की सेवा असल स्नान है, ते गुरु की सेवा की है पता है? गुर की सेवा, शब्द विचार। असी पोचा नहीं लाते, असी तो जी कभी सेवा नहीं की, असी भांडे नहीं नहीं प्यारिओ, जे तुसी शब्द की विचार कर लईए, शब्द की विचार सुन लईए तो ये सेवा है। हुण तुहाडे कोल कोई डॉक्टर आ जाए कमेटी कोल, कहे जी कोई सेवा दसो, तुसी जोड़े कर खड़ा कर दो, कोई सियाणप थोड़ा। उन्होंने चेयर लाओ, टेबल लाओ, उन्होंने कहे भाई मरीजां नूं देख, फीस ना लै, मरीजां नूं देख। उहदी लियाकत का लाभ लेना चाहिए ना। उन्होंने जोड़े कर थोड़ा बुरश दे के खड़ा करना चाहिए। वो जोड़े कर बुरश लैके खड़ा हो जाए, कोई हर्ज नहीं, पर मेरी जाचे उहदी लियाकत का, उहदे टैलेंट का, उहदे फन का सानू सत्कार करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, लाहा लेना चाहिए। ये जिहड़ी तुसी शब्द की विचार सुनते हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब मुताबिक ये भी सेवा का ही एक हिस्सा है। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा। ते जे तुसी पानी में इशनान नूं तीर्थ नहाना कहंदे हो, ते फिर कबीर साहब अगली पंक्ति च कहंदे ने, जल के मज्जन जे गत होवै, नित नित मेंढुक नाम है। इत्थे ध्यान रखना, मम्मे नूं एक ला है, दलावां उच्चारण 90% लोग दलावां ही उच्चारण करते। एक ला है, उत्ते बाकायदा टिप्पी है, ते ढाडी वाले ढड्डे नूं औंकड़ भी है, फिर कक्का है। जल कै मज्जन जे गत होवै, नित नित मेंढुक नावै। जैसे मेंढुक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। भाई जे पानी नाल इशनान कीतिया मुक्ति मिलती है, उच्ची अवस्था मिलती है, तो फिर पानी दे विच ते डड्डू दा ते जन्म भी पानी विच हुंदा है, जिंदगी भी पानी च बशर हुंदी है, और मौत भी पानी च ही हुंदी है। फिर जेड़े सिर्फ पानी नूं महत्व देंदे ने, उन्हां नूं डड्डूआं नाल तरजीह देनी चाहिए। जैसे मेंढुक तैसे ओए नर, उन्हां नाल तरजीह दे, फिर ते ओह डड्डूआं वर्गे ने। मनो कठोर मरै बनारस, नरक ना बांचिया जाए। मन बड़ा कठोर है, मन विच कोई दया नहीं, मन विच कोई तरस नहीं, मन पसीजदा नहीं, दुखी नूं वेख के नेत्र सजल नहीं हुंदे। मन बड़ा कठोर है, बड़े बड़े कठोर काम कर जाता है, हिंसा कर जाता है, दिल दुखा जाता किसी का। पर मरिया बंदा बनारस च कहता भी बनारस च मरीए तो मुक्ति हो जाती है। बाणी कहती है भी नरक ना बांचिया जाए, तेरा नहीं भला हो सकता, भावें तू शरीर बनारस ही जाके त्याग दे। नरक ना बांचिया जाई, हर का संत मरै हड़ंब है। इसे नूं साध संगत जी मगर कहते ने, इसे नूं हड़ंबा कहते। ये शराबी हुई धरती है, ये बारे बड़ी बार मैं जिक्र किया है, तो दोहराई ना हो जाए इस वास्ते मैं गुरेज कर रहा। हड़ंबा मगर शराबी हुई धरती है, जिहड़ा उत्थे तन त्यागेगा खोते की जून च पवेगा। इदां दी गल फैला दी, हालांकि है नहीं। कबीर साहब ने जानबूझ के उत्थे तन त्यागया, लोगों का भरम दूर कर ले। हर का संत मरै हाड़ंबै, तां सगली सैन तराई। दिनस ना रैन बेद नहीं शास्त, तहां बसै निरंकारा। कहो कबीर नर तिसै त्यागो, बावरिया संसारा। जिथे दिन वर्गी अवस्था नहीं होती, जिथे रात वर्गी अवस्था नहीं होती, जिथे वेदां शास्त्रां दी तो मनुख आजाद हो जाता। मैं ये भी अर्ज कर दिया, भावें किसी धर्म का कोई व्यक्ति है, वो जे इस अवस्था ते पहुंच जाए तो जीवन मुक्त हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं भाई वो सिख ही हो तो पार उतारा हो, वो किसी भी मजहब का हो सकता। ये भी मर्ज करते। मुसलमान कहते हैं भी जिन्ना चਿਰ सुन्नत ना कराओ, हजरत साहब विच ईमान ना लियाओ, तुहाडा जीवन सफल नहीं हो सकता। हिंदू कहते हैं जिन्ना चਿਰ बपतिस्मा, क्षमा करना, ईसाई कहते हैं बपतिस्मा ना लो, हिंदू कहते जनेऊ ना पाओ। गुरबाणी कहती है भी जगत जलंदा रख लै, अपनी किरपा धार, जित द्वारे उभरै तितै ले होगा। जिथों भी खैर पैंदी है, जिथों भी गल बनती है, उथों बना लो,
ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਦਿਨਸ ਨਰੈਣ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤ ਤਹਾਂ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਐਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਰ ਤਿਸੈ ਧਿਆਵੋ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਹ ਝੱਲੇ ਲੋਕੋ, ਝੱਲੀ ਲੁਕਾਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਤੇ ਆ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਬੜੇ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਤੂਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਬੜੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਹੋਵੇ, ਸੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਧ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ 5 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ 20 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤੇ ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗੀ ਓਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦਾ ਓਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਦੀ ਲਵੇ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੌੜੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੌੜੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਓਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਦੀ ਲੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਈ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾ, ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਿਉਂ ਫੜਨਾ? ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਦਾ ਫੜ ਲੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ। रख लीनी हर मेरी, अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी साधे। जिथे किथे इथे उथे तू ही तू है, और तेरी कृपा नाल मैं हमेशा ही सुखी, क्योंकि मैं तेरी टेक ले ली। अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी साध ही। तेरे भरोसे मगर बस्यो, मेरे तन की तपत बुझाई। पहले दर्शन मगर पायो, फुन कांसी बसे आई। जैसा मगर तैसी कांसी, हम एको कर जानी। हम निर्धन जो ए धन पाया, मरते फूट गुमानी। पहला मैनू तुहाडे दर्शन मगर विच होए। लोकी कहते सन सरापी हुई धरती है, पर मैनू तुहाडे दीदार ही मगर च होए, कांशी विच ते होए को नहीं गए। हुण इथों तीर्थ बड़ा के हर का दास, ये चीज क्लीयर हो गई। तीर्थ बड़ा के हर का दास, असीं की कहना है? हर का दास। सवाल करे, तीर्थ बड़ा के हर का दास ही हर का दास। क्यों? हरी दा दास उत्थे खलोता ते तीर्थ बनिया, और हुण उत्थे मुसलमाना ने वक्री जगह कबीर साहब की बनाई है, हिंदुआ ने वक्री बनाई है, सारा दिन तांते लगे रहते। 100-200 पुजारी उस पासे, 100-200 पुजारी उस पासे, सारा दिन वारी नहीं की आउंदी। वो कहते हैं शराबी हुई है, जिहड़ा इत्थे मरेगा खोते की जून पेगा। हुण उत्थे वारी नहीं मिलती। क्यों?
क्योंकि हरि के दास ने उत्थे शरीर त्याग दिता। हरि का दास उत्थे पहुंच गया, भगत कबीर साहब वर्गा महापुरुष शराबी हुई धरती ते भी लोगों के ताते लग गए। तो इसलिए हरि का दास वड्डा, हरि दे दास के मुकाबले ते तीर्थ वड्डा नहीं, तीर्थ सत्कार योग है क्योंकि हरि दे दास के उत्ते चरण पे ने। बस इतनी को गल। अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी साध ही, तेरे भरोसे मगर बस्यो। तीरथ दे भरोसे तीरथ ते नहीं वसिया, रब दे भरोसे तीरथ के उत्ते जाके वस गया। असी भी बड़े इन्हां चक्करां च पए ना, बई फलानी थां ते इन्नी वरा, फलानी थां ते इन्नी वरा। ये जिहड़े स्थान ने किसी कल्ले व्यक्ति दे नहीं, साडे सारिआं दे ने, असीं सारे सत्कार करने आ। पर खाम खा कहानियां जोड़ जोड़ के नाल इतिहासक स्थानां दे जी वो फलाना आया, अंज हो गया, अंज हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सत्कार ਵੱਧਦਾ नहीं। ਜਦੋਂ असलीयत सामने आउंदी है तो सत्कार सगों घटदा है। तो इस तरह के शोशे सानू नहीं छड्डने चाहिए। साडे लई इन्ना ही काफ़ी है भी जिथे जिथे साडे गुरु साहब के चरण पए ने भाई, साडे वास्ते वो स्थान अतिअंत सत्कारयोग है। असीं उहदा सत्कार करते रहना, भावें सानू कोई प्रेरे ते भावें सानू कोई ना प्रेरे, असीं तो सत्कार कर ही जाना, दर्शनदारे करन चले जाना। तो गलत अफवाहां उन्हां नाल मैनूं नहीं लगता भी कोई स्थान का सत्कार वधदा है। सगों कई बार असलीयत सामने आउण ते घटदा है। इस वास्ते इस गल का भी ध्यान देना चाहिए। पहले दर्शन मगर पायो फुन कांसी बसे आई। पहला मैनू मगर विच तुहाडे दर्शन होए, फिर मैं कांसी विच वसिया, ते जदों शरीर छड्डना सी फिर स्पैशली मगर चले गए। पर इन्हां लोकां नूं इक्को गल दा अहंकार है। किस गल दा? भी असीं कांशी विच रहिंदे। इन्हां लोकां नूं इक्को गल दा अहंकार है भी असीं जगन्नाथपुरी रहिंदे, असीं मथुरा रहिंदे, असीं उज्जैन रहिंदे, 7 पुरियां ने। जिस तरह साढ़े 5 तखत साहबान ने, हिंदू मत दियां 5 पुरियां ने, मुसलमानों के कई स्थान ने, 2 स्थान ज्यादा ने, एक मक्का ते एक काबा। एक जिथे जन्म होया हजरत साहब का, एक जिथे उन्होंने शरीर छड्डिया। 2 स्थान ज्यादा प्रचलित ने। वो भी कहते भी ये बड़े फकर नाल भी मैं काबे तो आया जी, मैं मक्के तो आया जी। असीं भी कह दें जी मैं तो रहने ही हजूर साहब हाँ, दास ते श्री अमृतसर साहब ही रहिंदा। ठीक है, बड़ी चंगी गल है, तू श्री अमृतसर साहब रहिंदा, पर तू अपनी एक्टिविटी वाल भी ध्यान दे भी गुरु रामदास की नगरी दे विच रह के तेरा जिहड़ा जीवन है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ, उन्होंने फॉलो करना। गुरु रामदास का जो हुक्म है, ਉਹਦੀ नगरी विच सिर्फ रहन नाल गल नहीं बननी, उसके बचनां नूं भी फॉलो करना पएगा, उसके हुक्म नूं भी मनना पएगा। करें गुमान चुभे 3 सूला, को काढ़न को नाही, अजय सुचोब को बिलड़ बिललाते नरके कोर पचाए। वेखो स्पष्ट कर दिता, कदी कदी तीरथ ते रहन दा मनुख नूं अहंकार हो जाता है। ध्यान दिया जे, बरीक नुकता है साध संगत। कदी कदी तीरथ ते रहन दा मनुख नूं अहंकार हो जाता है। तुसीं कहोगे जी फिर की हो गया? बहुत बड़ा रिएक्शन हो गया। की रिएक्शन हो गया? ਉਹਨੂੰ अहंकार हो गया, ਉਹਦੇ अंदर मैं आ गई। और प्यारे सुनियो बरीक नुकता, जिवें ही मैं आई तू छड़प्पा मार के बाहर निकल। किवें निकल गया जी? जब हम होते तब तू नहीं। भावें वो हम तीर्थ करके ही आ जाए, भावें वो हम किसी होर वजह करके आ जाए, जिवें ही हम आई तुम बाहर। किसी भी चीज की ईगो जिहड़ी है वो अध्यात्मक जीवन में बहुत बड़ा अड़िका लगती है। तीरथ बरत अर दान कर, मन में धरै गुमान, लिखिया नानक नेफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। सारी दुनिया नहाउंदी है, मिट्टी कट्टा लै जाए, हाथी नहाउंदा उल्टा मिट्टी कट्टा लग जाए। पहला सुन नाल पानी पांदा है, बाहर निकल के डस्ट पांदा है,
गिल्ली स्किन के उत्ते डस्ट की परत बन जाती है, अगले दिन फिर इस तरह करता है, होर परत मोटी, अगले दिन फिर करता है, होर परत मोटी, और फलस्वरूप बहुत मोटी परत। हाथी ਜਿਹੜੇ आज़ाद ने, ਜਿਹੜੇ कैद ने, उन्हों की गल नहीं मैं करता। आज़ाद हाथियों के जंगलों च जाके वेखो, मोटी मोटी परत जिहड़ी है उत्ते उन्हों ते बनी हुंदी है। हालांकि उहदे बारे कई विचार ने भी वो इस तरह जानबूझ के करते हैं बई मक्खी ते मच्छर वगैरह का डंग जिहड़ा वो उन्होंने फिर काम नहीं करता, थोड़ा आराम मिलता, ये भी उहदे पिछे एक सोच है। पर मैल ते जमदी है। तीरथ करते जाके वर्त रख के दान करके मन में हंकार आ गया, लाभ नहीं होना, उल्टी सगों हानि हो जानी है। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह। करे गुमान चुभे तिन सूला, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर में उदत, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। हे वैगुरु की कहिए भरम की है, मिसअंडरस्टैंडिंग की है, जो असी समझी बैठे हैं वो नहीं, और जो है वो सानू पता नहीं। सब तो वड्डा भरम, मैं गल समझने लिए अपना नाम लैण की गुस्ताखी कर रहा, सब तो वड्डा भरम मैं जसविंदर सिंह हाँ। ये सब तो वड्डी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनू झलपुना ना समझियो मेरा। सब तो वड्डा भुलेखा यह है कि मैं जसविंदर सिंह हाँ, जदों कि तू आत्मा है। जसविंदर सिंह एक थोड़े जे पीरियड लिए एक शरीर है, उसका नाम रखा गया, ये कदी नहीं सी और कदी नहीं होवेगा। आत्मा उदू पहला भी सी, आत्मा ये हुण भी है, आत्मा उदू बाद भी रहेगी, लिहाजा तेरा प्रॉपर नाम आत्मा। और इस तरह के एक नहीं सैकड़े साडे भुलेखे ने। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी दुकान है, मेरा मकान है। पुता अथी धनम अथी इति बालो विहंती, अतो ही अतनो नथी, कुतो पुता कुतो धनम। महात्मा बुद्ध त्रिपिटक ग्रंथ वो कहना, बंदा कहता है भी मेरा पुत्र, पुता अथी मेरा पुत्र, धनम अथी मेरा धन, मेरा बैलेंस। इति बालो विहंती, उमर लंघ जे। वो चलिया अतो ही अतनो नथी, तेरा ते पिंडा तेरा अपना नहीं गा, कुतो पुता कुतो धनम, पुत्र ते धन तेरे कितों बन जाने, कितों बन। ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये भी एक भुलेखा है। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना। जो असी मनी बैठे हैं वो नहीं है, और जो है वो सानू पता नहीं। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पाया पखारी, आ है मिसअंडरस्टैंडिंग। सौ गया तखत ते बैठा, अख लग गई, लगी अख दे विच किते जन्म होया, उत्थे पखारी बनया। किसी के दर ते अलख जगाई, उन्होंने कोई झिड़किया, हटा कट्टा काम करया कर। इन्ने चिर नूं वजीर ने मोढे तो, महाराज दरबार लगा है, तुसीं सौ गए, उठो। उठ के वेख्या, कहने लगा मैं तो सम्राट हाँ। वो कहने लगे भी सानू तो पता तुसीं सम्राट हो। वो कहने लगा नहीं भलिया, सुपने च पखारी बनया फिरदा। तो हुण समझना, ये जिहड़ा सौ के असीं सुपना देखने, उहनूं ते असीं सुपना मानने आ। जिहड़ा आ सुपना जाग के देख रहे हैं, इहनूं असीं सुपना मानते नहीं, ये बड़ी वड्डी विडंबना। ये भी एक सुपना है। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जाग को जान, ये भी सुपना है। एक सुत्या का सुपना, एक जागदियां का सुपना। जे इन्हें सुपना समझ लिया, वो फिर कहना मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया पखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। हुण मैं फिर उस शब्द वाल तुहाडी तवज्जो लवावां। करें गुमान चुभे तिन सूला, पवित्र स्थान ते रहण दा भी हंकार हो जाता है। वो हंकार फिर उन्होंने सूला वांगू अंदरों चुभदा। मैं एडे वड्डे स्थान ते रहना, इन्हें मेरा सत्कार ही नहीं किया, ये अर्थ जे। जिवें तुसीं उत्ते कहंदे हो ना, ज्यों ज्यों चलै चुभे दुख पावें, जम काल सह सिर डंडा है। कबीर साहब कहंदे ने, करें गुमान चुभे तिन सूला, ये दिल च खुभदियां। इन्हें सत श्री अकाल नहीं की, फतेह नहीं बुलाई, बल्ले 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 जी तुसीं हजूर साहब तो आए हो, अच्छा 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 अच्छा। कन तरसते इदां सुनने वास्ते, फिर वो सूला चुभदियां ने अंदरों। करें गुमान चुभे तिन सूला, को काढ़न को नाई, अजय सो चोभ को बिलन बिललाते, नरके घोर कुचाई।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੈ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਸਮ ਦੁਆਰ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੈ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਡੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਜੁਦਾ ਵੱਖਰੀ ਫਲਾਣੀ ਗੁੱਠ 'ਚ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਗੁੱਠ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਲੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹਲੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਆ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਉ ਭਇਆ ਉਦਾਸ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ